Hello everyone, today we will study about the UV visible spectroscopy. It is the first unit, it is included in the first unit of the MPAT, that is Modern Pharmaceutical Analysis Technique. So UV visible spectroscopy, it deals with the recording of the absorption of radiation in the UV and visible region of the electromagnetic spectrum. So the UV, the range of the UV, it is it is divided into two. One is the near UV, which is having the range of 200 to 400 nanometer. Far UV, or we can say it is also said to be as vacuum region, it is having the range of 10 to 200 nanometer. Visible region, it is 400 to 800 nanometer. It is generally used to detect the presence and elucidating nature of conjugated multiple bonds और aromatic rings. इसके और भी uses होते हैं, वो सब हम लोग एप्लीकेशन के टाइमिंग पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द क्रोमोफोर्स. क्रोमोफोर्स क्या होता है? एक आइसोलेटेड, these are isolated covalently bond that shows a characteristic absorption in the UV or visible region. It is a part of molecule responsible for imparting color to the compound. Functional groups containing multiple bonds are capable of absorbing radiations above 200 नैनोमीटर. मतलब इसमें सिर्फ वो लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, तो फिर वो लोग जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं अगर वो सिर्फ 200 नैनोमीटर से अबव हो. और ये जनरली कलर प्रोड्यूस करते हैं. दे जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू द कंपाउंड. कोवेलेंट बॉन्ड्स मीन्स व्हेन टू और more atoms share, when two atoms share one or more pair of the electrons in the electronic configuration. For example, C double bonds sulfur, C double bond oxygen, these are the example. Then the next one is the types of chromophores. It includes the two types. One is the independent chromophore, and second one is the dependent chromophores. A single chromophore which impart color to the compound is said to be as the independent chromophores. For example, azo groups are there, nitroso groups, quinonoid groups. Dependent chromophores, they are more than one chromophore is required. Okay, it requires the more than one chromophore to produce color in the chromogens. For example, the कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप, एसीटोन हैविंग, जैसे एसीटोन में अगर एक ही कीटोन ग्रुप होगा देन इट विल बी प्रोड्यूसिंग द कलरलेस कलर. वेयर एज डाई एसिटाइल होगा तो उसके अंदर क्या होता है, दो कीटोन के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. येलो हो गया तो ये कीटोन ग्रुप्स में जनरली शो किया जाता है. सी डबल बॉन्ड वो जो है वो कीटोन है. Then the next one is the non-conjugated alkene. It gives the intense absorption below 200 नैनोमीटर. जो भी एल्किन ग्रुप्स होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड, वो लोग क्या करते हैं, इंटेंस एब्जॉर्प्शन शो करते हैं. अगर उनका जो रेंज है वो क्या है, उनका जो रेंज होता है वो क्या है, 200 नैनोमीटर के बिलो ही होगा तो वो लोग इंटेंस एब्जॉर्प्शन शो करते हैं. उसी की वजह से क्या होता है, इट विल बी इनएक्सेसिबल टू यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. नॉन कॉन्जुगेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो वीक एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाते हैं. उनकी जो रेंज होती है वो 200 से 300 नैनोमीटर होती है. नेक्स्ट इज दी कार्बन. ये अलग टाइप के एग्जांपल्स है, जैसे एसीटोन का और साइक्लोहेक्सेन का कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो लैम्बडा मैक्स है 279 नैनोमीटर है. साइक्लोहेक्सेन का जो लैम्बडा मैक्स है 291 नैनोमीटर है. इसमें जो है कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स दे रखे हैं. और ये दूसरा एग्जांपल है 15 हेक्साडाइन लैम्बडा मैक्स 178 नैनोमीटर, 24 हेक्साडाइन लैम्बडा मैक्स 227. इसमें सिर्फ पोजीशन का स्ट्रक्चर जो सेम सिमिलर है बट उसमें जो पोजीशंस हैं वो वेरी करती हैं, तभी भी उनका जो लैम्बडा मैक्स है वो वेरी हो जाता है. तो डबल बॉन्ड की वजह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, या फिर उसके जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो है लैम्बडा मैक्स जो है शिफ्ट हो जाता है. conjugation with the carbon bond and the carbonyl group shift the lambda max of both groups to longer wavelength. इसी की वजह से इनके जो wavelength है वो longer हो जाती है. Another example is ethylene and the acetone. The lambda max of ethylene is 171 nanometer, whereas the acetone is having the lambda max of 279 nanometer.
Oxochrome, any group which does not itself act as a chromophore but whose presence shift the absorption band towards the red end of the spectrum. मतलब ये खुद से एक्ट नहीं करते क्रोमोफोर की तरफ. जब भी एक कोई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच हो जाता है क्रोमोफोर को, देन इट विल गोइंग टू शो इट्स प्रोड्यूस द कलर. हाँ, और इसे हम कलर इन्हेंसिंग ग्रुप भी कहा जाता है. जैसे फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच टू ए क्रोमोफोर, इट विल गोइंग टू मॉडिफाई द एबिलिटी ऑफ ए क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट, अल्टरिंग द वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन. Non-bonding electrons does not absorb radiation in near UV region but attach to a chromophore, alter wavelength and intensity of absorption. इसमें एग्जाम्पल दिया है बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन. सो द बेंजीन का जो लैम्बडा मैक्स है वो कितना है 255 नैनोमीटर. फिनॉल का लैम्बडा मैक्स है 270 नैनोमीटर. एनिलीन का जो लैम्बडा मैक्स है 280 नैनोमीटर है. द नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल है अमाइनो, दैट इज़ अमाइनो ग्रुप इज़ एन ऑक्सोक्रोम. तो इसमें एक एग्जांपल दिया है अमाइनो का. 280 नैनोमीटर है इसका लैम्बडा मैक्स. और और ये एनिलीनियम आयन जो है उसका लैम्बडा मैक्स 254 नैनोमीटर है. इन एनिलीन NH2 group act as a chromophore, but in anilinium आयन देयर इज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम. लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फिर क्या होता है उसका जो लैम्बडा मैक्स है वो चेंज हो जाता है. दैट विल बी 254 नैनोमीटर. द नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स. सो 4 टाइप्स के शिफ्ट्स होते हैं. एक तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो सेड टू बी एज द रेड शिफ्ट and it is the red shift. It is the effect in which the absorption maximum is shifted towards longer wavelength due to the presence of an oxochrome or by the change of solvent. ये जो भी absorption और we can say एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वो क्या है शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, क्योंकि इसमें जो ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से या फिर जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं. देन एन पाई ट्रांजिशन फॉर कार्बोनिक कंपाउंड्स एक्सपीरियंस पैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन द सॉल्वेंट पोलैरिटी इज डिक्रीज. ठीक है, जब सॉल्वेंट पोलैरिटी डिक्रीज होती है तब हमने कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या है पैथोक्रोमिक शिफ्ट देखा जाता है, दिखाई देता है. इन अल्कलाइन मीडियम पी नाइट्रोफिनाइल मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप्स है वो शो करते हैं हमें पैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन एवर दी पोलैरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज गेटिंग डिक्रीज is reduced. Okay, in alkaline medium p nitrophenol shows the red shift because the electronegative or oxygen delocalize more effectively than unshared pair of the electron. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है नाइट्रो ग्रुप का, सॉरी पी नाइट्रोफिनाइल का, जो इसके लैम्बडा मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या है डीलोकलाइज हो जाता है ईजिली rather than that of unshared pair of electrons. Next one is the hypsochromic shift. It is an effect in which the absorption maximum is shifted towards the shorter wavelength. It may be caused due to the removal of conjugation and also by changing the polarity of the solvent. और पोलैरिटी हमें पता ही है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम इन कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम पोलैरिटी कहते हैं. एग्जांपल देखेंगे तो एनिलीन जो है वो शो करता है ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम. हाँ, इट इज़ ऑल्सो सेट दी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज़ ऑल्सो सेट टू बी एज ब्लू शिफ्ट. जहाँ पे भी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिस केस में लॉन्गर वेवलेंथ है ना, जैसे लॉन्गर वेवलेंथ हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट में देखी थी, वहाँ पे जो एनर्जी है वो लो एनर्जी रहती है. इन द केस ऑफ द हिप्सोक्रोमिक वहाँ पे क्या है जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसकी वजह से क्या है जो एनर्जी लेवल है ना वो हाई हो जाएगा. देन द एग्जांपल इज एनिलीन जो है शो कर रहा है ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम, सो इट लूजेज द कॉन्जुगेशन. यहाँ पे जो है एग्जांपल दे रखा है जब NH2 होता है, जब एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है तो वहाँ पे क्या जाके क्या NH3+ बनता है और Cl- हो जाता है. तो इनका लैम्बडा मैक्स दे रखा है एसिडिक मीडियम की कंडीशन में, ये एग्जाम्पल है. दूसरा जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीजेज
If oxochrome introduces to the compound, the intensity of that absorption will increases. For example, pyridine, it is having the lambda max of 257 nanometer. Another one is the 2-methyl pyridine. It is having the lambda max of 260 nanometer. Hypochromic shift, the absorption maximum will decreases. It is also an effect in which the intensity of absorption maximum will decreases. In this also we have example is the naphthalene. Same. Then 2-methyl naphthalene, it is showing the difference in the lambda max. Like in the case of the naphthalene, it is showing 90,000. When a particular group it has attached to it, the lambda max will be the 10,250. It will be due to the distortion caused by the methyl group in 2-methyl naphthalene. Next one we will study the graph of it. This is bathochromic shift, which is also said to be as red shift. Hypsochromic shift is said to be as the blue shift, and here is the hypochromic shift, and above we are having the hyperchromic shift. And this is a plotting of absorbance versus the wavelength. So this is all about the spectral shift and the chromophores and oxochromes and chromophores. Thank you.